Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you so much, Shishir Pandey, sir. At the very outset, I would like to extend my heartiest congratulations to Dr. Shishir Pandey, sir, for organizing this 1 week online workshop on a very relevant theme, that is research methodology in social sciences, under this Bhavadi Institute of Business Management in academic association with IAMD. So it is a really great pleasure that such workshops are being conducted, and I have gone through the schedule, and really it covers very relevant issues in research. And when a research is when a scholar is going to start his research, probably these are the things that he should focus upon. So the whole workshop covers various important issues such as research problem, research overview, research as in process, sampling design. Then also various statistical tools have been discussed, like parametric, non-parametric, multivariate analysis. And also I have learned that today very learned Professor Dr. Chand P. Sani sir is going to engage his delivery, his lecture on very relevant and contemporary research technique, that is factor analysis. So really, factor analysis nowadays is very commonly, very we can say sought after research technique being used while publishing research papers, good research papers. I have been doing factor analysis, and really it is very wonderful technique. Factor analysis is primarily used for data reduction or to explore the factors underlying the various statements and all. So I hope that today's deliberation, I don't hope, in fact I am very much sure that Dr. Chan sir will be very fruitful to every researchers. Even I will be joining the session, and it would be very fruitful to everyone. And again, at the end, I would like to congratulate Shishir Pandey sir, and I would like to thank Dr. Chand P. Saini sir, who is from SDT University Gurugram, for conducting this wonderful session. And all the best wishes from my side, sir. Thank you very much, sir. And thanks for your wishes. And we will be happy if you are with us uh, throughout the session. Yes, sir. Now I am going to introduce our uh, speaker of today's session, Dr. Chand P. Sani, sir. Dr. Uh, Dr. Chand P. Saini is currently working as Assistant Professor in Department of Commerce and Management, SGT University, Gurugram. His area of specialization is finance. He is MBA, MCOM, PhD, UGC JRF Net in Management, as well as UGC Net in Commerce. It is coincidence where both we have two personality having qualification of Net in both the area, Management and Commerce. He has conducted more than 10 workshops in the area of research methodology and data analysis, etc. Dr. Sani holds more than 10 years experience in teaching, research, and academia. He received 5 Best Papers Presentation Award in various national and international conferences. He has presented his research papers, case studies in more than 30 conferences of national and international repute, uh, including IITs and IIMs. He also pursued more than 6 workshop, short-term certificate courses, FDP from IIMs, IITs, NITs. He has authored and co-authored more than 20 research papers, case studies, including UGC, KS, Scopus, ABTC, and Web of Science listed journals. This is his brief introduction, but in brief introduction, he shows his talent and knowledge, which he is going to share with us, and we will be thankful for his delivery because he is going to share and deliver a lecture on factor analysis, which is very useful for today's era. And I hope and I wish all the participants will be beneficial with his lecture. Thank you.
And I would like to invite Dr. Chand P. Saini, sir. Please, sir, start your session. And thank you very much, sir. And the mic is over to you, sir. Thank you so much, Dr. Pandey, and thank you, Dr. Roy. The words you have given to me, I personally feel that these are not the word which I am a personality of. We will be discussing today. Thank you, in fact, the entire team of organizing for giving me this opportunity to interact with some of the students, which I can see into participants list, and some of the learned person where I can discuss my learnings with you all. Without wasting much of time, let's straight away come to the topic which we are going to discuss today is we will be discussing factor analysis today. Well, in order to check whether all of you are connected or not, let me just get an idea how many of you are there where I can connect to you. I request all the participants to kindly put your video on once and then to back to, switch off your video so as we can get an idea. All the participants to kindly show their video once, and then we will be again going back to the meeting. Okay, I can see maximum of the participants. Mr. Mosang, I can see. Mr. Dahal, I can see. Mr. Srivastava, I can see. I can see Mr. Vagela, Ms. Hussain, Ms. Sharma, Ms. Praveen. I request Vandana Sharma and Premati ji to kindly switch on their video once. I request Kanchan, Dilip Kumar ji, Mukesh ji, Vijaya ji, Sanjay ji to kindly switch on their video once. If Zahira Wasim can do the same favor, please. Okay, Mr. Mukesh is visible. Vandana Sharma, though not herself, but some of the videos are visible. There are still some participants to whom I cannot see actually. I request all the participants to kindly share their video once and then put back. Thank you so much. Thank you. Zahira Wasim, Vijay Lakshmi, Shweta, Dr. Prashant, Krishna Murari ji. These are the names to whom I cannot see as of now. Great, I'll be expecting that they'll be joining later on if they have not joined, or if probably they have joined or not Actually, getting some my... participants are joining. Some Okay. has joined just now, and some are Sure, sure. trying to join. Sure, Dr. Pandey will be waiting then. So Dr. Pandey, we can see a list of participants, 26, including me. Will it permit us to start or shall we wait? Actually, if we are waiting, then we will get late. Exactly. So I think we shall start. I actually wanted that nobody should miss the very starting of the session. Sure, then. In that case, we may wait for 5 minutes more, because it is 2:10. We should start on 2:15. Done. We'll starting till the meantime. Meantime, those participants, I just want to make 3-4 things very clear. Kindly use the chat box even into duration of my lecture. If you are getting anything or I am
No, very fast. Some part is missing, and if you're not able to connect, since for some of the participants this can be very new topic, since I'm taking these sessions, I may assume that you all have understood and may skip some of the part. If you have any query at any point of time, kindly put it into the chat box that this portion you could not understand. Number one. And number two, we will be trying to make it an hands-on practice session, for which I have requested Dr. Pandey to share one SPSS practice file with you all. He probably have shared or he'll be sharing soon. And I have shared it. that's It is sent to the WhatsApp group what is created for this workshop for participants. So I have perfect. shared, and I would like to request all the participants, please download your that file it will be used with SPSS. The file will be opening only if you are having SPSS SPSS. into your laptop. If you do not have, please don't panic. That's just an add-on so as you can have a hands-on practice parallelly. If you cannot do it, you may do it later on as well. And number three is we will be making this session very short and crisp. We won't be stretching it, but we won't be missing the objective of the session. That I won't be covering it very fast that you could not understand. Also, I won't take very much of time so as it will be boring for you, since that I came to know that it's a 6 days long workshop and you might be getting more of assignments. And in fact, yes, as discussed with Dr. Pandey, this session will be followed by an assignment. For the link, Dr. Pandey will be sharing after the session, for which we will be assessing you for your understanding. It will be containing some multiple choice questions, which will be only through my discussion, which I'll be discussing with you. So we can see 27 now. Dr. Pandey, I think we should start. We should start, sir. Thank you so much. Thank you. And thank you, Dr. Roy, for being with us. Let's start with the very one-term factor analysis, which is being used nowadays into various nature of research. मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ that into chat box itself, so as I can read that how many of you have some of the knowledge from the factor analysis, or it is completely new one for you. Just write it into the chat box. Say already know something or very new. Just use two words, already know something or very new to you. So as accordingly I can connect. I mean, मुझे वो introduction कहाँ से उठाना है. Okay, completely new. I can see. Okay, already know something. It's new. Know something but properly understood करना है. Kanchan Sharma, sure. Little familiar, new topic. So it completely new. Great sir, thank you so much. Thank you everybody. I can sense कि बहुत लोगों के लिए बिल्कुल नया है, तो मैं बिल्कुल शुरू से बता देता हूँ आप लोगों को. जिन लोगों को they already know it, it will be a kind of revision for them. Little familiar. Sure. Thank you. Know something but not properly understood. Thank you so much. I'm closing the chat box. I can see that majority of the participants are very new to this topic. I'll be quoting one example to start with. For example, you as a researcher want to start a research on impact of COVID on the mental health of the students. I'm repeating. What title of our research is impact of COVID-19 on the mental health of students. Now this covers कि अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हम स्टूडेंट का ओपिनियन जानना चाह रहे हैं. नंबर एक, उनका कॉलेज और स्कूल जाना छूट गया है, सो दे आर मिसिंग देयर फ्रेंड्स, वन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. टू, दे आर नॉट एबल टू रिपोर्ट टू द रूटीन लाइफ जो होना चाहिए था, एंड देन इट इज अगेन हैपनिंग. अब वो हैपन नहीं हो रहा है तो दैट अगेन हैज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. थर्ड, इतने सारे वेबिनार्स, इतने सारी जूम क्लासेस, वेबएक्स क्लासेस स्टूडेंट्स के ऊपर इम्पोज कर दी गई है फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स.
that also again having a mental problem on the students. अब जब मैं ये वाली चीज लेके चला हूँ, तो आपने रिसर्च की एक बहुत कॉमन चीज पढ़ी होगी कि रिसर्च के लिए यू शुड हैव रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और हम ऐसा बोलते हैं कि जितना रिव्यू स्ट्रॉन्ग हो उतना आपका रिसर्च अच्छा होगा, उतने वेरिएबल्स आप ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्योंकि कोविड तो नया है, या कोविड जैसे पेंडेमिक पहले 1 या 2 या 3 हुई हैं, और वो वे बैक हुई है 100 साल पहले, और उसको हम आज के सिनेरियो में यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स मेरे इस टॉपिक के लिए आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ लिटरेचर, नंबर 1। अब अगर लिटरेचर नहीं है तो क्या मैं कोई रिसर्च नहीं कर सकता? कुछ हमारी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन वो मैं पेपर में कोट नहीं कर सकता, क्योंकि रिसर्च आपके अंडरस्टैंडिंग पे नहीं चलती। दे आस्क फॉर सपोर्ट, आप कहाँ से सपोर्ट करना चाहते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग आपने एक क्वेश्चनर डेवलप किया। क्वेश्चनर को फैक्टर एनालिसिस की लैंग्वेज में स्केल बोलते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, ये 4-5 वर्ड्स हैं जो टेक्निकल हैं, जो मैं आगे पूरे लेक्चर में यूज करूंगा। यू प्लीज राइट इट इनटू योर माइंड और इनटू योर नोटबुक इफ यू आर कैरिंग, कि वैसे हम क्वेश्चनर बोलते हैं, लेकिन फैक्टर एनालिसिस में हम उसको स्केल बोलते हैं। तो मैंने बोला, आप जब मेंटल हेल्थ चेक करना चाहते हैं किसी भी स्टूडेंट की, तो आप एक क्वेश्चनर फिल करवाएंगे उनसे। नाउ दैट क्वेश्चनर विल बी कवरिंग n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब वहां 40 से 50 स्टेटमेंट्स हो सकती है। उन 40 से 50 स्टेटमेंट्स में आपने पूछा कि क्योंकि आप स्कूल को मिस कर रहे हैं इसीलिए आप पे मेंटल प्रेशर बन गया है, क्योंकि अब आप पेरेंट्स की सुपरविजन में ज्यादा हैं इसीलिए आप पे मेंटल प्रेशर बन गया है। ऐसा करके आपने 40-50 मेंटल प्रेशर या मेंटल हेल्थ वाले क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट यानी स्टूडेंट से पूछे टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अब आता है एनालिसिस। हम बोलते हैं कि यूजुअली हम कुछ तरीके यूज करते हैं जो आपने, मैं मान के चल रहा हूँ पिछले सेशंस में अगर पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़े होंगे तो सिग्निफिकेंस लेवल चेक किया, पी वैल्यू चेक की, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, ये सारा आपने पढ़ लिया। पर मेरे इस क्वेश्चनर में जहां मैंने 50 से 60 स्टेटमेंट्स पूछी हैं, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, क्योंकि रिलेटेड तो है स्टेटमेंट्स, लेकिन 50 का एनालिसिस सेपरेट करूं और 50 पे टी टेस्ट और एफ टेस्ट लगा के मैं एनालिसिस करूं, मेक्स नो सेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं फैक्टर एनालिसिस यूज करूंगा। अब मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूं कि फैक्टर एनालिसिस यूज क्यों होता है। बेसिकली फैक्टर एनालिसिस को हम यूज करते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ज्यादा हो और आप उन्हें रिड्यूस करना चाहते हैं इन इंटरप्रिटेबल मैनर। मैंने बताया 50 स्टेटमेंट है अपने क्वेश्चनर में, उन 50 के 50 का एक एक का इंटरप्रिटेशन मेक्स नो सेंस। उसको सेंसिबल बनाने के लिए कि मैं इस पूरे डेटा से कुछ निकाल पाऊं, मैं फैक्टर एनालिसिस यूज करूंगा ताकि उन स्टेटमेंट्स को रिड्यूस कर सकूं। इसीलिए फैक्टर एनालिसिस टेस्ट का नाम डेटा रिडक्शन टेक्निक भी है। That is why we also know this test to be one of the technique of data reduction. Data reduction मतलब बहुत सारे को कंपाइल करके थोड़ा कर देना। अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फैक्टर एनालिसिस में मैंने बताया कि हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स को कम कर देंगे और कुछ फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। आमतौर पे जब आप फैक्टर एनालिसिस टेस्ट लगाते हैं तो उसकी कुछ एक कंडीशंस हैं which you all should know, and what are these? I request you to kindly write the assumptions कि ये टेस्ट आप कब लगा सकते हैं, अपनी किस नेचर ऑफ रिसर्च पे लगा सकते हैं। तो देयर आर वेरी बेसिक थिंग्स। नंबर 1, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो मीट्रिक डेटा होना चाहिए। मीट्रिक का मतलब it should have been collected into interval or ratio scale.
और जब मैं इंटरवल स्केल की बात कर रहा हूं तो हम बात कर रहे हैं जहां पे हम रिस्पॉन्स लेते हैं स्ट्रांगली अग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री. So number one condition is this, that your data should be metric data. यानी आपने जो 50 स्टेटमेंट्स पूछी हैं अपने रिस्पोंडेंट से, that should cover from strongly agree to strongly disagree. उसका नोमेनक्लेचर आप दे सकते हैं, 1 को आपने क्या दिया, 5 को आपने क्या दिया, या 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल भी चलता है आजकल. सो 1 और 7 को आप अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हैं. नंबर 1 कंडीशन. नंबर 2, मल्टीकोलिनियरिटी अमंग वेरिएबल्स. जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वेरिएबल्स, वो मैं क्वेश्चंस के लिए यूज कर रहा हूं. जैसे मैंने क्वेश्चनेयर के लिए स्केल यूज किया, वैसे मैं वर्ड वेरिएबल यूज करूंगा क्वेश्चंस के लिए. सो मैं बोलता हूं मेरे क्वेश्चनेयर में 50 वेरिएबल्स थे, यानी देयर वर 50 क्वेश्चंस इनटू माय क्वेश्चनेयर. और जो मैंने आपको अजम्पशन बताई वो है मल्टीकोलिनियरिटी होनी जरूरी है वेरिएबल्स के बीच में. याद रखिएगा, फैक्टर्स के बीच में नहीं, वेरिएबल्स के बीच में. यानी आप एक तरीके की बात को 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स में पूछें. एक तरीके की बात को 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स में पूछें. मैं एग्जांपल दे रहा हूं. मेरा टॉपिक था, मैं कोविड-19 का इफेक्ट देखना चाह रहा था मेंटल हेल्थ पे. तो मैंने बोला not reporting to the university has created pressure on my mind. Not having social group to whom I can interact is creating mental pressure on me. Third question, so much of negative news around creates pressure on my mind. Number 4, it creates pressure on my mind that I cannot resume my academics now onwards. ये जो मैंने 4 मेंटल प्रेशर की बातें पूछी, इनके बीच में रिलेशन ये है कि मैं ये स्टूडेंट लाइफ से डायरेक्ट रिलेट करने वाले क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछ रहा हूं. और मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब ये है कि इनके रिस्पॉन्सेज में सिमिलैरिटी होनी जरूरी है. यानी आप ऐसा कहें कि अगर आपको नॉनवेज नहीं पसंद तो नहीं पसंद. फिर अगर आपको नेक्स्ट पूछा जाता है कि क्या चिकन पसंद है और आप यस बोल रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट मल्टीकोलिनियरिटी वाले रिस्पॉन्सेज. इससे आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा. आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, रिस्पोंडेंट ने बोला वेजिटेरियन, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं. नेक्स्ट में आपने पूछा डू यू लाइक चिकन, उन्होंने यस बोला. तो आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकला. ना आपको ये पता लगा कि कितने रिस्पोंडेंट वेजिटेरियन थे, ना आपको ये पता लगा कि कितने लोग फेवर में हैं चिकन के. सो मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब अगर उसने एक पार्ट पे डिसएग्री बोला है, सेम पार्ट पे डिसएग्री हर जगह पे होना चाहिए या अग्री होना चाहिए. नंबर 3, एडिक्वेट सैंपल साइज. नंबर 3 असम्पशन है. ये टेस्ट से लगाने के पहले से हम चेक करना चाहते हैं कि क्या इस पे ये टेस्ट लगेगा. ये मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि क्या आपके डाटा पे फैक्टर एनालिसिस लग सकता है क्या, उसको चेक करने के लिए. नंबर 3 इज एडिक्वेट सैंपल साइज. देखिए रिसर्च में मैं इस बात में अब बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट शुड बी माय सैंपल साइज. तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि सैंपल साइज कैलकुलेशन का फॉर्मूला है. कुछ लोग बोलते हैं जैसा गाइड बोले वैसा कर ले. कुछ लोग बोलते हैं मैंने कुछ रिसर्च पेपर में पढ़ा सिमिलर नेचर की प्रैक्टिस में इतना सैंपल होता है तो मैंने सैंपल ले लिया. यहाँ पे सैंपल एडिक्वेसी चेक करने का एक बड़ा सिंपल फार्मूला है. दैट इज मेरे कंस्ट्रक्ट में यानी मेरे क्वेश्चनर में अगर 50 वेरिएबल्स थे यानी 50 क्वेश्चंस थे, तो उसके 10 टाइम रिस्पोंडेंट्स होने अच्छे माने जाते हैं. If I have 50 questions and I'm taking response from 500 plus respondent, तो it will be into favor. फेवर मतलब ये टेस्ट सही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा. लेकिन अगर नहीं है, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस, तो मान लीजिए 400 रह गया तो भी, लेकिन अगर आप 250 पे 50 क्वेश्चंस जज करना चाह रहे हैं
so results won't be reliable. ये आप चीज याद रखिएगा. सो एडिक्वेट सैंपल जब आपको चेक करना हो, जितने क्वेश्चनेयर में क्वेश्चंस रखे उसके 10 टाइम रिस्पोंडेंट से वो एक्यूरेटली फिल्ड करवा लीजिए. डन. नेक्स्ट assumption इज नो मिसिंग डाटा. जब आप SPSS में एंट्री कर रहे हो क्वेश्चनेयर की, तो कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है. अगर रिस्पोंडेंट ने कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं किया है, सो इट इज रिक्वेस्टेड कि आप वो क्वेश्चनेयर हटा दें, उसको इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में ना लें, क्योंकि अगर आप लेंगे तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी से सारा रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा. सो नो मिसिंग डाटा इज एन अजम्पशन. अभी जब हम हैंड्स ऑन करेंगे तो एक प्रैक्टिस है जहां से मैं चेक कर सकता हूं कि क्या कोई डाटा मिसिंग था क्या, तो मुझे पता लग जाएगा. यानी कि स्टेटमेंट नंबर 47, 48, 49, 50, ये 4 स्टेटमेंट्स पे सपोज 2 रिस्पोंडेंट ने रिस्पोंड नहीं किया, मैंने क्वेश्चनर बाहर किसी से दे करके सारी एंट्री करवाई है, उसको तो रिसर्च की नॉलेज नहीं है, उसने मुझे एंट्री करके दे दी, मैंने उस SPSS फाइल पे अगर फैक्टर एनालिसिस लगाना शुरू किया, माय रिजल्ट्स वोंट बी गुड. सो मिसिंग डाटा को रिमूव करना है, यानी कि वो जो लास्ट के 4 रिस्पोंडेंट थे जिन्होंने 4 क्वेश्चंस का रिस्पांस दे दिया, उनको डिलीट कर दीजिए. पूरा रिस्पोंडेंट हट जाएगा. देन कम्स आउटलायर्स. आउटलायर्स चेक करने का मतलब ये होता है कि एक बड़ी कॉमन स्टेटमेंट पे कि क्या आपको लगता है कि एग खाने से प्रोटीन कंटेंट बढ़ता है, या हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस. सब लोग स्ट्रांगली अग्री बोल रहे हो और 5 लोग स्ट्रांगली डिसएग्री बोल रहे हो, तो वो 5 लोग आउटलायर्स हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे आपको रिस्पॉन्स किया है. होप यहाँ पर क्लियर है मेरा मैटर. जो मैंने आपको assumptions बताए हैं, कुछ बड़े बेसिक से assumptions. I request you to kindly put it into the chat box so as I can read कि assumptions तक आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई कि किस डेटा पे हम फैक्टर एनालिसिस लगा सकते हैं. सो बेसिकली मुझे चेक क्या क्या करना है. आई नीड टू चेक मेट्रिक डाटा, स्ट्रांगली अग्री डिसएग्री वाला डाटा हो, मल्टीकोलिनियरिटी, एक जैसा सा रिस्पॉन्स होना चाहिए, स्टेटमेंट्स का, वेरिएबल्स का, फैक्टर्स का नहीं, एडिक्वेट सैंपल साइज होना चाहिए, और फिर मिसिंग डाटा ना हो उसमें, और आउटलायर्स ना हो. ओके, डन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. अब ये जब आपको ये क्लियर हो गया कि आपका डेटा पे आप फैक्टर एनालिसिस लगा सकते हैं, अब क्वेश्चन आता है ये लगाना कैसे है और किन किन चीजों पे आप फोकस करेंगे व्हाइल गोइंग फॉर दिस. ये देखिए मैं ये जो PPTs हैं ये शेयर कर दूंगा डॉक्टर पांडे से. ही विल बी शेयरिंग ऑन टू योर व्हाट्सएप ग्रुप. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये थ्योरी है. जो चीजें मैंने आपको इतने सारे ब्रीफ में बता दी, मैंने बता दिया ये डाटा रिडक्शन में काम आता है, मैंने बता दिया स्केल डेवलपमेंट मतलब क्वेश्चनर नया डेवलप कर रहे हैं, आमतौर पे हम स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर ले लेते हैं किसी का यूज किया हुआ, लेकिन अगर मैं सेमी स्ट्रक्चर्ड बना रहा हूँ तो उस स्केल को डेवलप करने के बाद उसकी रिलायबिलिटी चेक की जाती है कि क्या इसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए रिजल्ट्स पे भरोसा किया जा सकता है. अभी हम आगे आएंगे व्हाट इज रिलायबिलिटी. साइकोमेट्रिक है जब भी आप कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन लेवल, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिस्फेक्शन लेवल, देन आपके कुछ प्रोसेस होती है लेवल ऑफ अवेयरनेस जब आप चेक करना चाहते हैं. ये इस तरीके की नेचर की रिसर्च में फैक्टर एनालिसिस यूज होता है. ओके, डायमेंशनैलिटी जब आप पढ़ना चाहते हैं. उसके बाद मैंने बता दिया कंस्ट्रक्ट क्वेश्चनेयर्स है, वेरिएबल्स क्वेश्चंस है. ओके, नाउ कमिंग टू एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप लोगों के पास वो फाइल है तो टू काइंडली ओपन इट इनटू योर SPSS. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने लैपटॉप पे आई विल बी शोइंग टू यू. जस्ट लेट मी शेयर इट. New share, and then if you have any doubt as of now, kindly mention it into the chat box. फाइल नॉट ओपनिंग. यस, अगर प्रीति आपके पास अगर SPSS नहीं है तो ये फाइल ओपन नहीं होगी. फॉर दिस यू नीड टू हैव दिस सॉफ्टवेयर. इसका ट्रायल वर्जन आता है जिसको आप अपने लैपटॉप में आफ्टर दिस वर्कशॉप कुछ 14 डेज का होता है, एंड देन यू विल बी एबल टू डू दिस.
अदरवाइज नो इश्यूज। मैं जो चीजें लिख रहा हूँ वो यू कैन राइट इट इनटू योर नोटबुक की प्रोसेस क्या है, और यू कैन रिकॉर्ड दिस मीटिंग एज वेल, ताकि जब कभी भी आप अपने रिसर्च पेपर पे इसको लगाना चाहेंगे तो आप इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। डन, कमिंग बैक। ओके प्रीति, अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मेरी एक फाइल है जिसमें मैंने 13 क्वेश्चंस सोशल मीडिया यूजेज के ड्यूरिंग कोविड पूछे रिस्पोंडेंट से कि क्या आपको सोशल मीडिया ने लॉकडाउन के स्ट्रेस को कम करने में हेल्प किया। Now what statements have I asked from the respondents कि लॉकडाउन पीरियड में सोशल मीडिया, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, फेसबुक, ट्विटर, आपका लिंक्डइन, प्रोफेशनल और जो सोशल मीडिया है यूट्यूब एंड अदर तरीके की ओटीटी स्पेस, ओटीटी का मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियो, इन सब की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने रिस्पोंडेंट से पूछा कि क्या आपको लगता है कि इसने आपको हेल्प किया व्हाइल यू वर डूइंग दिस। ओके, मेरी आवाज कम अगर आ रही है तो is it okay Preeti now? Great, thank you. So मैंने 13 क्वेश्चंस पूछे हैं, और अगर मैं इस फाइल को स्क्रॉल करूं और आपको क्लियरली विजिबल हो तो मेरे रिस्पोंडेंट्स आर 132। मैंने बताया था 10 टाइम्स होना चाहिए क्वेश्चंस का। I request participants to kindly put your audio on mute mode. That's why we are using chat box. If we require any chatting, at times हम लोग उसको वापस mute करना भूल जाते हैं. So it is good. Now you can see it into my SPSS file. मैंने 13 questions पूछे हैं social media usage के respondent से कि क्या आपको help किया है social media ने to overcome the stress या tension जो बन गई थी उसको ओवरकम करने के लिए। और मैंने यहाँ आपको दिखाया कि 132 रिस्पोंडेंट से मैंने पूछा है। नाउ लेट्स डू सम प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो है वी विल बी डूइंग इट, यस वी विल बी डूइंग एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस ऑन सर्टेन assumptions। सो हम वो assumptions एक बार देखना चाह रहे हैं। देखिए मैं एनालाइज एक लिंक दिया हुआ है SPSS में, एनालाइज में गया, डायमेंशन रिडक्शन, प्लीज राइट इट इनटू योर नोटबुक इफ यू आर कैरिंग अलोंग विद यू, यू मे राइट। आपको SPSS में अपनी फाइल ओपन करनी है, एनालाइज में जाना है, उसमें नीचे आने पे डायमेंशन रिडक्शन है। अगर आपका दूसरे तरीके का फैक्टर एनालिसिस, आई मीन मैं आपको बता दूं, आई एम यूजिंग SPSS दिस 21, कुछ लोगों के पास 16 हो सकता है, कुछ लोगों के पास 23 वर्जन है, ये इनके जो लेटेस्ट अपडेट्स आ गए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उसको ढूंढ सकते हैं। किसी किसी में ये डायरेक्ट फैक्टर एनालिसिस के नाम से मिलेगा, किसी किसी में डायमेंशन रिडक्शन के अंडर फैक्टर जाके मिलेगा। सो आई एम क्लिकिंग इट, ध्यान से देखिएगा द प्रोसेस। आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। लेट मी गो थ्रू द चैट। ओके, अभी तक कोई डाउट नहीं आया है। ये आप लोगों का यहाँ पे ये चैट बॉक्स ओपन होगा, ये इस बॉक्स के अंदर आप इधर देख पा रहे हैं, जिसको मैं शिफ्ट प्लस डाउन वाली जो एरो है उसको प्रेस करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो चीजें सेलेक्ट होती जा रही है वो येलो होती जा रही है। देयर वर 13 स्टेटमेंट्स जिनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और डाउन एरो से मैंने इन सबको प्रेस करके एडजेसेंट एरो से इस बॉक्स में भेज दिया है। आई एम रिपीटिंग दिस प्रोसेस। देखिए आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, वेरिएबल 1 को टिक किया, इधर चला गया, वेरिएबल 1 को टिक किया, एरो प्रेस किया, वेरिएबल 3 को टिक किया, एरो प्रेस किया, इस तरीके से कर सकते हैं। या आप शिफ्ट और डाउन एरो की को यूज करके यू कैन फाइंड इट। सो मैंने ये 13 तक जाके इधर एरो प्रेस किया, मैंने 13 वेरिएबल्स यानी अपनी 13 स्टेटमेंट्स को इधर साइड में ले लिया है। ओके, डायमेंशन रिडक्शन को सेलेक्ट करने के बाद कौन सा स्टेप किया है सर? ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। मैं आई विल बी रिपीटिंग दिस, एनालाइज,
डायमेंशन रिडक्शन, फर्स्ट ऑप्शन है फैक्टर। फैक्टर को क्लिक करूंगा, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैंने अपने 13 स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट किया, शिफ्ट और डाउन एरो से वेरिएबल्स के अंडर सेंड कर दिया। अब आप ध्यान से अपनी नोटबुक में लिखते जाएं कि हमें करना क्या क्या है। जिन लोगों का SPSS काम नहीं कर रहा या जिन लोगों के पास ये SPSS फाइल ओपन है, दे कैन डू इट पैरेलली विद मी। यू नीड टू गो टू डिस्क्रिप्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव्स देखिए ध्यान से, डिस्क्रिप्टिव्स में ऑप्शन आया है स्टैटिस्टिक्स। कुछ तो बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड है। इनिशियल सॉल्यूशन पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, कुछ पे टिक मैं लगाऊंगा कि मुझे क्या क्या स्टडी करना है। सो मैं बोलूंगा मैं यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव्स भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं कोफिशिएंट्स भी पढ़ना चाहता हूँ कोरिलेशन मैट्रिक्स में, मैं एंटी इमेज भी पढ़ना चाहता हूँ, और मैं KMO बार्लेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी भी पढ़ना चाहता हूँ। रिपीटिंग, इनिशियल सॉल्यूशन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टिक था, मैंने यूनिवेरिएट को टिक किया, कोफिशिएंट्स को टिक किया, एंटी इमेज को टिक किया, KMO बार्लेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी को टिक किया। इन सबको टिक क्यों किया? आउटपुट में जब हर टेबल को पढ़ेंगे तो साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये हमने क्यों किया। अभी आप सिर्फ अपनी नोटबुक में लिख ले कंटिन्यू। उसके बाद एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन को जब आपने टिक किया है, ये ब्लू कलर के ड्रॉप डाउन डायलॉग बॉक्स में ना कुछ अलग अलग तरीके की फैक्टरिंग दी हुई है। प्रिंसिपल कंपोनेंट, अनवेटेड लीस्ट स्क्वायर, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग, अल्फा फैक्टरिंग, इमेज फैक्टरिंग। बहुत डिटेल में बिना जाए मैं आपको बता दूं, आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है उसे ही सेलेक्ट रहने देना है। डिस्प्ले में आपको स्क्री प्लॉट पे टिक करना है। स्क्री प्लॉट पे आपको टिक करना है। बाकी आइगन वैल्यू पे इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, सो यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। आपको कंटिन्यू करना है। हमने 2 फैक्टर एनालिसिस के स्टेप कर लिए, डिस्क्रिप्टिव, एक्सट्रैक्शन। अब हम कर रहे हैं रोटेशन। रोटेशन में यहाँ पे बहुत तरीके की रोटेशन है। मैंने वेरीमैक्स रोटेशन को ऑप्ट किया है, इसके पीछे भी रीजन बाद में बताऊंगा। वेरीमैक्स, ये प्लीज आप लिखते जाएं कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या सेलेक्ट किया है। बाय डिफॉल्ट नन पे सेलेक्ट होता है, इसमें आपको वेरीमैक्स पे टिक करना है एंड यू हैव टू कंटिन्यू। उसके बाद स्कोर्स, इसमें हमें कुछ नहीं करना, स्कोर्स को टिक करके कंटिन्यू। देन यू नीड टू गो टू ऑप्शंस और आपको बोलना है सबसे लास्ट जो डायलॉग बॉक्स बना हुआ है, सप्रेस स्मॉल कोएफिशिएंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बिलो 0.5। मैंने टाइप किया है ये 0.5। मैंने क्या किया, सप्रेस स्मॉल कोएफिशिएंट्स, यानी इससे नीचे की वैल्यू को सप्रेस करके ही मुझे आउटपुट बताएं। तो मैंने सप्रेस पे टिक किया और 0.5 अपनी तरफ से लिखी है वैल्यू। इसके पीछे भी रीजन मैं जब आउटबॉक्स में आएंगे तो आपको बताऊंगा। मैंने कंटिन्यू प्रेस किया। मैंने यहाँ पे सारी चीजें जो एंटर होनी चाहिए थी फैक्टर एनालिसिस में 13 स्टेटमेंट्स के ऊपर वो कर दिया और ओके प्रेस किया। ओके प्रेस करने पे यू विल बी गेटिंग आउटपुट विंडो। उस आउटपुट विंडो में अपने आप आपको ये सारे मैट्रिक्स दिखाई देंगे। I am going to chat box. सर प्लीज रिपीट व्हाट टू चूज। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर से बता रहा हूँ। आप एनालाइज गए, डायमेंशन रिडक्शन पे गए, एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर। फैक्टर में जाने के बाद आपने सारे वेरिएबल्स को जिसका रिस्पॉन्स आपने स्ट्रांगली डिसएग्री और एग्री पे लिया उसको आपने इधर वाले डायलॉग बॉक्स में भेजा। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव क्लिक किया तो आपने यूनिवेरिएट, इनिशियल सॉल्यूशन बाय डिफॉल्ट था उसके भी रहने दिया, कोएफिशिएंट्स, एंटी इमेज और KMO बार्लेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी ये सेलेक्ट किया है। कंटिन्यू प्रेस किया, फिर एक्सट्रैक्शन को ओपन किया। यहाँ पे स्क्री प्लॉट मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है और प्रिंसिपल कंपोनेंट को सेम रहने दिया। कंटिन्यू। रोटेशन में मैंने वेरीमैक्स को
कंटिन्यू किया था वेरीमैक्स। स्कोर्स में मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा विंडो को कंटिन्यू करा दिया। और ऑप्शंस के अंदर सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट्स 0.5 किया, कंटिन्यू किया, ओके प्रेस किया, तो मेरे सामने ये आउटपुट ऑटोमेटिकली आपके एक आउटपुट शीट ओपन हो जाती है एसपीएसएस। ओके, शुरू करते हैं एक एक करके एनालिसिस। बस यही चीज समझने की है इसमें। आप लोग अगर ये समझ जाएंगे तो आपको फैक्टर एनालिसिस मतलब उसका रेलेवेंस आ जाएगा समझ में कि हम क्यों इसको यूज कर रहे हैं। ओके, कमिंग टू वन, मैंने सबसे पहला जो एनालिसिस किया वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का किया। आप ध्यान से देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मैंने क्या चेक करना है। सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। मिसिंग वैल्यू मुझे तब पता लगती जब, अगर आप होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को क्लियरली विजिबल है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट टेबल पढ़ के बता रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरी 13 स्टेटमेंट्स के कोरेस्पॉन्डिंग 132 लिखा हुआ है। 132, 132, 132, 132, 132, यानी कि इस स्टेटमेंट्स में 132 के 132 रिस्पॉन्सेज डाले गए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट नंबर यानी वेरिएबल 12 और 13 में 130 और 130 आ जाता तो वहां पे दो वैल्यूज मिसिंग थी। सो फॉर दैट वी विल बी डूइंग इट। एनालिसिस स्क्रीन इज नॉट शोइंग, वर्कशीट इज विजिबल। ओके, आई विल शेयर दिस वन। Thank you for updating. So I'll be sharing it again, and this is my output screen. Output share. Hopefully it is visible now. Preeti, hopefully Mr. Mahesh, hopefully okay, great, thank you. मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने इसीलिए चेक किया है क्योंकि हमने ना अजम्पशन में ये बात डाली थी कि नो मिसिंग डाटा होना चाहिए। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या मेरे किसी वेरिएबल के अगेंस्ट कोई मिसिंग डाटा तो नहीं है। सो मैं देख पा रहा हूँ वेरिएबल नंबर 1 से लेके वेरिएबल नंबर 13 यानी मेरी 13 स्टेटमेंट्स के कोरेस्पॉन्डिंग 132 रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं, विच इज गुड। नंबर 1, एक एनालिसिस हमने कर लिया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। सेकेंड, कोरिलेशन मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कोरिलेशन मैट्रिक्स में वेरिएबल 1 से लेकर 13 का आपस में वेरिएशन दिखाया हुआ है, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। तो इसकी डायगोनल हमेशा 1 मिलेगी, यानी 1 के 1 का साथ कोरिलेशन 1, 2 का 2 के साथ कोरिलेशन 1, 3 का 3 के साथ कोरिलेशन 1, which is considered to be good। मतलब ये हमारे एनालिसिस में हमें ये बता रहा है that there is no issue into the statement interpretation। यहां तक हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स में देखना है कि क्या हमारी डायगोनल वैल्यू 1 आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। इफ इट इज गोइंग दैट वे इट्स ग्रेट। दो हमने एनालिसिस कर लिया अभी तक। नंबर 1 इज I can see the chat. Okay, yes. हमने एक देखा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं थी। दूसरा हमने कोरिलेशन में डायगोनल देखा। थर्ड मैंने दो चीजें चेक की है। एक तो KMO, देखिए जब मैं यहाँ आउटपुट में थर्ड पे टिक कर रहा हूँ तो KMO बार्लेट टेस्ट की एक टेबल आप लोगों के सामने विजिबल हो जाएगी। इसको मैं बोल रहा हूँ कि मैंने देखा KMO की सैंपल एडिक्वेसी की वैल्यू मेरी आई है 0.672। ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बहुत पुअर भी नहीं है। ये मैंने जानबूझ के ऐसा सैंपल सेट बनाया ताकि आप लोगों को बता सकूं। देखिए आपको याद हो तो मेरे पास 13 स्टेटमेंट्स थी और मैंने सैंपल लिया था 132 लोगों का। तो KMO बार्लेट मुझे बोल रहा है कि आपका सैंपल अगर थोड़ा सा और ज्यादा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये वैल्यू एनीथिंग 0.6 प्लस इज कंसिडर्ड टू बी गुड, लेकिन एनीथिंग 0.8 प्लस इज कंसिडर्ड टू बी एक्सीलेंट। सो देयर विल बी 0.8 अगर मेरी वैल्यू आती, इट कुड हैव बीन एक्सीलेंट, अदरवाइज इट इज गुड।
ओके, सो दैट गोज फॉर सैंपल एडिक्वेसी केएमओ बार्लेट टेस्ट। मेरी मतलब जो अपने केस में है, जो हमने डेटा सेट लिया है, इट इज गोइंग गुड। ओके, सेटिस्फैक्टरी में वर्ड यूज करूंगा। उसके बाद आप देखिए सिग्निफिकेंस ना, बार्लेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी में 0.000 आ रहा है। टेबल के बिल्कुल एंड पे देखिए, बार्लेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी सिग्निफिकेंस वैल्यू आई है 0.000। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको नल हाइपोथेसिस की पूरी अंडरस्टैंडिंग है। हम जब नल हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, हम बोलते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन, बेटा एम आई ऑडिबल? आई एम सॉरी पार्टिसिपेंट्स, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Yes, yes. Okay, great. So what we will be doing is we will be sampling adequacy में मैं तुम्हें बता रहा था कि आप लोगों को ये देखना है कि आपको नल हाइपोथेसिस की नॉलेज है। नॉलेज इज समथिंग कि नल हाइपोथेसिस में हम लिखते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फिर हम पी वैल्यू चेक करते हैं। पी वैल्यू अगर 0.05 से लेस आती है तो हम बोलते हैं कि दिस इज एक्सेप्टेड, दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है या रिजेक्टेड। यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं, मतलब ये बार्लेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी आपकी हमेशा सिग्निफिकेंट आए तो ही आप आगे बढ़े। आगे बढ़े मतलब ये जो आगे की टेबल्स हम देखेंगे अभी एक एक करके, तो ही आप आगे जाए। अगर मेरी यहाँ पे 0.768 आ जाती तो मान लीजिए कि मेरा ये टेस्ट मेरे इस डेटा पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, केएमओ बार्लेट टेस्ट में हमने दो चीजें देखी, एक सैम्पलिंग एडिक्यूरेसी, ये आपको इंटरप्रिटेशन में लिखनी है ये चीज कि केएमओ की जो वैल्यू थी वो 0.672 आई। फिर किसी ऑथर को, नरेश मल्होत्रा को या एंडी फील्ड को या जिस भी रिसर्च बुक को आप प्रेफर करते हैं, उसको कोट करते हुए आप लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज कंसीडर्ड टू बी गुड। देन बार्लेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी में हम सिग्निफिकेंस वैल्यू चेक करते हैं। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट टेबल पे, एंटी इमेज मैट्रिसेस। ये अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए, विच विल बी ग्रेट फॉर यू। ध्यान से सुनिएगा इसकी मतलब क्या है। देखिए मैं आपको पूछता हूं आई नीड चेंज, ये मेरी एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट में वो बोलता हूं आई नीड चेंज। आइडियल बार्लेट सिग्निफिकेंस लेवल इटसेल्फ इज लेस देन 0.05। आई मीन जो हम लोग पी वैल्यू का सिग्निफिकेंस देखते हैं वही होना चाहिए। This was a question being asked into the chat box. I have answered. It is the same जो हम significance value दूसरे टेस्ट में देखते हैं, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक में, the same holds here as well. Mostly cases में if the data is okay, mostly cases में ये 0.000 ही आएगा, it will be significant. जी, मैं एंटी इमेज मैट्रिसेस आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली, एक स्टेटमेंट मैंने बोला आई नीड चेंज। आप लोगों ने इससे क्या इंटरप्रेट किया, प्लीज राइट इनटू द चैट बॉक्स। माय स्टेटमेंट वाज आई नीड चेंज। आपने क्या इंटरप्रेट किया वो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। ओके, आई नीड सम टाइम। शहनाज ने इसको इस हिसाब से समझा है। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर आंसर्स प्लीज। व्हाट आई नीड चेंज स्टेटमेंट्स आपके हिसाब से आपने क्या इंटरप्रेट किया? यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद करंट सिचुएशंस। ओके, आपने बोला कि मैं चेंज चाहता हूँ, ठीक है, ग्रेट, मैं परेशान हो गया उन सब चीजों से। नीड टू चेंज एनवायरनमेंट, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मैं बता दूं, मैं एक्चुअली आपसे छुट्टे पैसे की बात कर रहा था। In which aspect not clear, it can include many factors. Excellent Kanchan, so that's what I was saying कि मैं आपसे छुट्टे पैसे की बात कर रहा था। मैंने आपको बोला I need change, मुझे खुले पैसे चाहिए। आप लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया है कि मैं करंट सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हूँ।
एक्चुअली मैंने अगर आप मुझे बोल देते कि आपने खुले पैसे समझे तो मैं दूसरा बता देता तो दैट्स एन सेपरेट, आई मीन जोक्स अपार्ट। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एज अ रिसर्चर मैंने क्या पूछा और एज एन रिस्पोंडेंट ने उसको कैसे परसीव किया, ये चेक करना बहुत जरूरी है। एज अ रिसर्चर मैं क्वेश्चनर में क्या पूछना चाह रहा था, मैंने लिखा आई नीड चेंज, स्ट्रांगली अग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री लिखिए, और रिस्पोंडेंट ने उसको कैसे लिखा। दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं एंटी इमेज कोरिलेशन क्या बताता है कि हाउ योर रिस्पोंडेंट्स हैव परसीव्ड योर स्टेटमेंट्स। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इस टेबल को पढ़ते कैसे हैं। इस टेबल का भी आपको डायगोनल एलिमेंट देखने हैं जिसपे रेज टू द पावर ए लिखा हुआ है। एंटी इमेज कोरिलेशन की टेबल में भी आपको डायगोनल एलिमेंट्स देखने हैं जिन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग रेज टू द पावर ए बन के आया है। ये वैल्यू आपकी 0.6 से प्लस है, गुड। 0.7 से प्लस है, वेरी गुड। 0.8 से प्लस है, एक्सीलेंट। यानी जैसा आप पूछना चाह रहे थे रिस्पोंडेंट ने उस बात को भी वैसा ही समझ के रिस्पॉन्स किया है। अगर मैं आपको हाईलाइट कराऊं अपने केस में, आप वेरिएबल 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला अगर देखेंगे, सो वैल्यू आई है 0.580। यानी मेरी स्टेटमेंट नंबर 9 was not very much clear to the respondents to respond। कर दिया है उन्होंने रिस्पॉन्स अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बट रिस्पॉन्स जिस तरीके के आए हैं उससे ये लग रहा है कि रिस्पोंडेंट्स इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। कुछ क्वेश्चंस पे वैल्यू आई है 7.734, 0.719, 0.756 विच इज गुड। कुछ पे वैल्यू आई है 0.619 विच इज सेटिस्फैक्ट्री, कि कुछ हद तक समझ गए। सो एंटी इमेज कहता है कि जब आप स्केल डेवलपमेंट कर रहे थे, जब आप क्वेश्चनर डेवलपमेंट कर रहे थे, तो जो आपने स्टेटमेंट्स डाली वो कितनी अच्छी रही, कितना सही इंटरप्रेट रिस्पोंडेंट कर पाया। ओके, नाउ कमिंग टू द कम्युनैलिटीज। मैं नेक्स्ट टेबल आप लोगों को बता रहा हूं। कम्युनैलिटीज देखिए, आपको याद होगा कि जब अभी हमने सप्रेस वैल्यू बिलो किया था तो वहां पे मैंने लिख दिया था कांट सी स्क्रीन। well Dr. Rajesh, I have already shared the output screen. Hopefully it is visible to everyone. Dr. Sahu is not able to get it. Visible, okay. Dr. Sahu, it probably can be your end pe, aapke end pe it can be the internet issue. Thank you. We are coming back to this. See, what we were saying is, आपको ध्यान होगा मैंने एक कमांड देते हुए उनको बोला था सप्रेस वैल्यू बिलो 0.5, ठीक है। तो मैंने ये बोला था, मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन सा फैक्टर किसके अंडर आता है। अब अगर आप कम्युनैलिटीज देखें तो आप देखिए मेरी लास्ट 12 और 13 की वैल्यू 0.454 और 0.485, यानी बिलो 0.5 है। ये मेरे ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं। ओरिजिनल रिजल्ट्स मतलब ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन फैक्टर एनालिसिस के पास था। फिर मैंने फैक्टर टेस्ट को बोला कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, इसको इम्प्रोवाइज करके दीजिए, मुझे थोड़ा बेटर रिजल्ट चाहिए जिसको मैं कोट कर सकूं। इसीलिए जनरेट होती है रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स, जिसमें हम बाद में आएंगे। सो बेसिकली कम्युनैलिटीज हम कहीं पे भी इंटरप्रिटेशन में नहीं डालते, लेकिन मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था कि इस टेबल का मतलब क्या है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन। देखिए, मैं टॉपिक लेके चला था इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। मेरा स्केल यानी कि मेरा क्वेश्चनर कितना परसेंट इस मॉडल को जस्टिफाई कर पाएगा, ये टेबल मुझे टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड से पता लगता है। आई एम रिपीटिंग, इट इज, मैंने बोला मेरा टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ।
मेरा वो क्वेश्चनेयर जो मैंने क्वेश्चनेयर भरवाया रिस्पोंडेंट से, कितना % रिजल्ट निकाल पाया या कितना एप्ट मेरा वो क्वेश्चनेयर डिजाइंड था, इस चीज का ये टेबल इंटरप्रिटेशन देती है। हमें बिल्कुल लास्ट कॉलम पढ़ना है, प्लीज आप मेरे कर्सर को देखिए ध्यान से, बिल्कुल लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, जहां पे there are 4 factors which we are discussing and these 4 factors is, पहला फैक्टर 16.971% चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा फैक्टर 16.30 को कर रहा है, तो जो कम्युलेटिव बन गया वो 33% बन गया, तीसरा फैक्टर 15% वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि 49% स्टडी एक्सप्लेन हो गई, चौथा फैक्टर 12.631 एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि टोटल स्टडी मेरी 61.6 यानी कि 62%, विच इज वेरी गुड। आई मीन वी शुड नो दिस कि एनीथिंग विच इज 50% प्लस टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड, एनीथिंग विच इज 50% प्लस होल्ड्स गुड रिजल्ट। हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो हमारे केस में दे आर गुड, दे आर सेटिस्फैक्टरी। तो हमारी 62% के आसपास वेरिएबल्स की स्टडी वेरिएंस एक्सप्लेन हो रहा है मेरे क्वेश्चनर की स्टेटमेंट से। डन। तो ये चीज हमें कोट करनी होगी अपने इंटरप्रिटेशन में, दैट वी केम आउट विद द 4 फैक्टर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा हमने 4 फैक्टर क्यों लिए हैं। 13 स्टेटमेंट्स को 4 फैक्टर में डिवाइड कर दिया है फैक्टर एनालिसिस में, उसमें से टोटल स्टडी 62% और हर फैक्टर का कंट्रीब्यूशन अगर आप देना चाहें तो अलग अलग दे सकते हैं। नेक्स्ट, स्क्री प्लॉट। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं अभी बता रहा हूं आपको। चैट बॉक्स में कुछ आया है, यस व्हाई इट इज यस विजिबल, व्हाई इट इज for 4 not for 13 questions। जी मैं अभी वही बता रहा हूँ शशांक, दिस इज माय नेक्स्ट डिस्कशन। स्क्रीप लोड को जब आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखिए, आइगन वैल्यू। आप मेरे स्क्रीप लोड की एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है आइगन वैल्यू। मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। देखिए आइगन वैल्यू का क्या मतलब है। आइगन वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए मिनिमम फैक्टर की। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेंटल हेल्थ की फैक्टर एनालिसिस ने 4 फैक्टर दिए, जिसमें शशांक का क्वेश्चन था कि 4 क्यों, तो मैं भी आपको आंसर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इंटरप्रिटेशन पढ़िए। 4 फैक्टर मेंटल हेल्थ के लिए मेरे निकल के आए। नंबर 1, टू मच ऑफ ऑनलाइन क्लासेस से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई है। नंबर 2, सेपरेशन फ्रॉम क्लासमेट्स। नंबर 3, सेपरेशन फ्रॉम कैंपस लाइफ, वो जो पार्टी करते थे, वो जो केक्स कटिंग करते थे, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते थे, वो भी नहीं हो रहा। और नंबर 4, पेरेंट सुपरविजन। यानी मैंने 4 फैक्टर बोले और 4 फैक्टर के अंदर मेरी 13 स्टेटमेंट्स क्लब हो गई। आपको याद हो जब मैंने मल्टीकोलिनियरिटी बोला था तो मैंने बोला था कि एक तरीके के सवाल को आप 4 बार पूछेंगे 4 अलग अलग तरीके से, ताकि आप चेक कर पाए कि ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। अब जो मैं आपको आइगन वैल्यू की बात बता रहा हूँ, आइगन वैल्यू हर फैक्टर की 1 प्लस होनी चाहिए। 1 प्लस का मतलब दैट यू विल बी गेटिंग, अब मैं स्क्रीप प्लॉट को अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस की तरफ लेके जाऊं तो उसके ऊपर 4 सर्कल बच जाते हैं, 1 2 3 4, जो 1 से ऊपर है, बाकी सारे 1 से नीचे हैं। ये देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि नंबर 5 से लेके नंबर 13 की वैल्यू आइगन वैल्यू के चार्ट पे 1 से बिलो आ रही है। फैक्टर एनालिसिस का गोल्डन रूल है कि हर फैक्टर की आइगन वैल्यू 1 प्लस होनी चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो फैक्टर आपकी स्टेटमेंट से बना है, हर स्टेटमेंट का उसमें कंट्रीब्यूशन कम से कम 25% जरूर हो। मान लीजिए एक फैक्टर के अंदर 4 स्टेटमेंट्स आई, सो चारों स्टेटमेंट्स 25-25% कंट्रीब्यूट करेंगी तो एक फैक्टर बनेगा।
वो फैक्टर रिलायबल तब होगा जब उसकी आइगन वैल्यू 1+ होगी। अगर 1+ नहीं है तो कोई एक स्टेटमेंट तो बहुत ज्यादा रिस्पोंडेंट को उधर की तरफ ले जा रही है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स भटका रही हैं रिस्पोंडेंट को, सो दैट वोंट बी हेल्पफुल फॉर अस। तो यहाँ से स्क्रीप प्लॉट हमें ये हेल्प करता है ये देखने में कि कितने फैक्टर को मैं अपनी स्टडी में कंसीडर करूं। तो मैंने बोला 4 सर्कल 1 से ऊपर है तो 4 फैक्टर को कंसीडर करूंगा। यही बात अब मैं आपको दिखाता हूं रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स में। स्क्रीप प्लॉट में कंपोनेंट के बाद रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स, जिसको हम अपने रिजल्ट्स में कोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मुझे फैक्टर एनालिसिस ने 4 फैक्टर निकाल के दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। उन्होंने बोला कि आपका जो नेचर ऑफ स्टेटमेंट था उसके हिसाब से आपकी स्टेटमेंट नंबर 3, 4 और 6 पहले फैक्टर के अंडर आ रही है, 10, 11, 12, 13 सेकेंड फैक्टर के अंडर आ रही है, 5, 7 और 8 थर्ड फैक्टर के अंडर आ रही है, 1, 2 और 9 फोर्थ फैक्टर के अंडर आ रही है। There is some chat into the why it is 4 not 13. Can we say 4 questions are explaining maximum of the construct? नहीं शशांक, हम ये कहेंगे कि वो 13 क्वेश्चंस मिलके 4 फैक्टर बनाते हैं, और वो 4 फैक्टर्स मतलब आप ये बोले कि 4 फैक्टर्स आर एक्सप्लेनिंग मैक्सिमम ऑफ द कंस्ट्रक्ट, आप क्वेश्चंस ना बोले। हमने 4 क्वेश्चन नहीं लिए हैं, हमने आपके 13 क्वेश्चंस को 4 ब्रॉड हेड में डिवाइड कर दिया है। प्लीज रिपीट द टॉपिक रिलेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स। पहले मैं शशांक के क्वेश्चन का आंसर कर दूं। शशांक का क्वेश्चन है कि सर 4 अगर मैक्सिमम कंस्ट्रक्ट जो है वो मैक्सिमम एक्सप्लेन कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 13 की बजाय 4 क्वेश्चंस। मैं बोल रहा हूं नहीं, आप क्वेश्चंस वर्ड मत यूज कीजिए, आप बोलिए कि फैक्टर एनालिसिस में 13 क्वेश्चंस 4 फैक्टर में चले गए और 4 फैक्टर्स मैक्सिमम यानी कि 62%, 62 हमने टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन की टेबल में देखा था, वो कंस्ट्रक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। हम वेरिएबल्स की बात नहीं करेंगे, जब हमें रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स मिल गई तो हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो ये सारे आइटम किसी फैक्टर के अंदर चले गए हैं। ये तो हुआ शशांक के क्वेश्चन का आंसर। शहनाज, आपने बोला कि आप रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स को दोबारा दिखाइए। तो बेसिकली ना, हम जब आप लोग बहुत बार फैक्टर एनालिसिस यूज कर चुके होंगे तो आप ये ऊपर की 2-3 टेबल्स देखेंगे, कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 केएमओ बार्लेट टेस्ट, नंबर 2 टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड, नंबर 3 स्क्रीन प्लॉट और नंबर 4 रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स। जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे इस टेस्ट के, जो हमारे सबसे काम का है वो सबसे काम का ही रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स है, जो हमें ये बता रहा है कि आपकी स्टेटमेंट 4 के अंडर चली गई। अब वो 4 स्टेटमेंट्स आर लाइक दिस। 4 स्टेटमेंट्स में मतलब नंबर 1 फैक्टर में वेरिएबल नंबर 3, 4, 6 चले गए। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा था। लेट अस सी फैक्टर नंबर 2, जिसको मैंने बोला था मिसिंग द कैंपस लाइफ। तो जो मेरे वेरिएबल थे 10, 11, 12, 13, वो मेरे क्वेश्चन ही ऐसे थे that during COVID I am missing campus life. Strongly agree से strongly disagree. I miss cake cutting during my college life. 2. I miss bunking my classes during campus life. 3. During जब COVID नहीं था. Number 4. I miss watching movies with the friends into free lecture. मतलब मैंने ये चीज रिलेट करने की कोशिश की कि जो स्टूडेंट लाइफ रूटीन चल रही थी कोविड से पहले, कोविड के आने के बाद जब मैंने ये 4 स्टेटमेंट्स पूछी तो इन चारों का नेचर कैंपस लाइफ से रिलेटेड है, 10, 11, 12, 13 का। इसीलिए सेम तरीके का रिस्पॉन्स होगा। यानी अगर बच्चा केक कटिंग मिस कर रहा है, स्ट्रॉन्गली अग्री, तो पक्का वो अपनी बंकिंग भी मिस कर रहा होगा, मूवी वॉचिंग भी मिस कर रहा होगा और पार्टी भी मिस कर रहा होगा। यानी सेम नेचर पे रिस्पॉन्ड दिया तो रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स ने हमें बोला आप फैक्टर नंबर 2 का नाम चाहे जो मर्जी रखें, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि 10 से 13 के बीच में देयर हैज बीन सिमिलैरिटी इनटू द रिस्पॉन्सेस। तो फिर जब मैंने अपने क्वेश्चनर की स्टेटमेंट्स उठा के पढ़ी तो मुझे पता लगा अच्छा इट इज रिलेटेड टू कैंपस लाइफ।
तो फिर मैंने फैक्टर का नाम दे दिया कैंपस लाइफ। सो बेसिकली मैंने 4 फैक्टर क्या क्या दिए। नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस, इतनी सारी जूम और वेबएक्स की क्लासेस का लिंक शेयर हो जाता है बच्चों के साथ, बैक टू बैक लेक्चर्स ले रहे होते हैं, तो वो उनके ऊपर मेंटल प्रेशर बना रहा है, समझ भी नहीं आ रहा फिर भी सुनना पड़ रहा है। नंबर 2 कैंपस लाइफ। नंबर 3 अब उन्हें स्टूडेंट पेरेंट्स के सुपरविजन में रहना पड़ रहा है, दैट्स वन। एंड नंबर 4 कैन बी जो दे आर मिसिंग द एंटायर जो बस की ट्रेवलिंग थी, जब वो स्टूडेंट्स या वो जो कंपटीशन था कि मैं फर्स्ट आऊंगा सेशनल्स में, वो वाला कंपटीशन मिस होने से भी मेंटल प्रेशर बन रहा है कि घर पे कोई दूसरा ज्यादा पढ़ लेगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसकी पढ़ाई को। सो बेसिकली दिस इज रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स में हमें बोला कि 4 देयर हैज बीन द मेजर फैक्टर व्हिच इज एक्सप्लेनिंग मैक्सिमम ऑफ द कंस्ट्रक्ट। Shahnaz, hope your answer, I mean your query has been resolved. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Great. Okay. Now let's come back to the last part of discussion. I mean not last, this is very vast. मैंने आज सिर्फ exploratory factor analysis touch किया है। इसका एक सेकेंड लेवल होता है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, जिसको हम CFA बोलते हैं। उसका मैं आपको ब्रीफ बता दूं, होपफुली वी विल मीट अगेन इन वन और अदर सेशन एंड देन वी विल बी डूइंग CFA एज वेल। इसका लॉजिक बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको लेक्चर शुरू करते हुए कहा कि मैं जो अभी अपनी स्टडी कर रहा हूँ इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ, इसके रिगार्डिंग मुझे कोई बहुत ज्यादा रिव्यू नहीं मिला, ना कोई स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर मिला, क्योंकि ये तो जनवरी से ही आया है वर्ल्ड में, तो ऐसा कुछ स्टैंडर्डाइज था नहीं। तो आई क्रिएटेड माई ओन, जिसकी मैंने अभी रिलायबिलिटी आपको चेक करके दिखाऊंगा। अब आती है बात कि अगर मान लीजिए कोई स्टडी ऑलरेडी हो रखी होती है, जैसे हमने लीडरशिप स्टाइल पढ़े हैं अपने मैनेजमेंट में, जिसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल। वो लीडरशिप स्टाइल का इम्पैक्ट मैं देखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे। यानी मैं बोलता हूँ एक यूजुअली एक टीचर के इन तीनों में से कोई एक लीडरशिप स्टाइल होगा। या तो टीचर बहुत ऑटोक्रेटिक होता है कि जैसा मैंने बोला वैसा करो, या बहुत डेमोक्रेटिक होता है कि पहले बच्चों से पूछता है बेटा तुम असाइनमेंट करना पसंद करोगे या क्विज खेलना पसंद करोगे, तो बच्चे ने बोला सर क्विज, और उस टीचर ने मान लिया, वो डेमोक्रेटिक स्टाइल की टीचिंग करता है। लेजिस्फेयर हमने पढ़ा दिया, जैसे मैंने आज आपको पढ़ा दिया, अब मैंने उसके बाद एक फॉलोड बाय असाइनमेंट दिया और बोला आप उसको करेंगे तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। तो ये 3 तरीके की लीडरशिप स्टाइल हो गए, ये हम सबको पता है। जब हमें पता है कि लीडरशिप जो मेजॉरिटी है वो 3 तरीके की है, और मैं उसका इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे, कि अगर मैं ऑटोक्रेटिक टीचर होता तो ज्यादा अच्छा होता, डेमोक्रेटिक होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेजिस्फेयर, ऐसे केस में यूज होता है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ध्यान से सुनिएगा। हम हमेशा अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कोसते हैं। हम बोलते हैं यार स्कूल से ही बच्चा पढ़ के नहीं आता, कॉलेज में उसे समझाना पड़ता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। यानी हम ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं एलिमेंट्री एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लैग कर रहा है। जब हम उसे फॉरेन से कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं कि डेफिनेटली यार फॉरेन के बच्चे ज्यादा एडवांस हैं, उन्हें लैपटॉप, नोटबुक सब यूज करना आता है क्लास 6 में। देन अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये सेम स्टडी जर्मनी में हुई, जहां पे एक रिसर्चर ने लीडरशिप स्टाइल का इम्पैक्ट देखना चाहा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि स्टूडेंट जो आप लोग भी मानते हैं कि ऑलरेडी इतने एडवांस्ड हैं, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए होंगे। तो वहां से मेरा निकल के आया कि लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अब कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या कहता है कि भैया जर्मनी में तो ये स्टडी हो गई और लेजिस्फेयर को बेस्ट लीडरशिप या बेस्ट टीचिंग स्टाइल बताया गया है, क्या ये मेरे सैंपल पे भी होल्ड करता है? तब मैं रन करूंगा कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, जिसको हम अमोस सॉफ्टवेयर में रन करते हैं, जिसमें मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं कि द फैक्टर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड फ्रॉम XYZ रिसर्चर होल्ड्स इन ऑन टू माय सैंपल और डाटा और नॉट। अगर करता होगा तो मैं सपोर्ट कर दूंगा कि सपोर्टिंग टू द लिटरेचर, जर्मनी की तरह यहाँ भी लेजिस्फेयर है। नहीं करता होगा कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में, अगर मेरा मॉडल फिट अच्छा नहीं आया, वैल्यू पुअर आई, तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्ट्रारी टू द रिव्यू
यहाँ पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल ज्यादा अच्छा है, यानी कि बच्चे को डंडे मार के ही पढ़ाना पड़ता है, वरना वो पढ़ेंगे नहीं। सो दिस इज कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ये मैं जस्ट आपको एक डिफरेंशिएशन देना चाह रहा था कि जनरली जब आप कंस्ट्रक्ट डेवलप करते हैं, जब आप डाटा को रिड्यूस करते हैं, व्हेन यू डू नॉट हैव प्रायर नॉलेज, व्हेन यू आर नॉट वेरी मच क्लियर कि कौन सी स्टेटमेंट कैसी जाएगी, तो आप ईएफए लगाते हैं। जब आपको पता है सब कुछ तो आप सीएफए लगाते हैं और अपने सैंपल पे मॉडल फिट चेक करते हैं कि वो कंफर्म हो रहा है या नहीं। लास्ट सेशन ऑफ द डिस्कशन, अब हम डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी। देखिए आपने दो तरीके के वर्ड सुने हैं जब भी आप क्वेश्चनर की बात करते हैं। वन इज वैलिडिटी, सेकंड इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये कि अगर इस क्वेश्चनर को ओवर एंड अगेन रिस्पोंडेंट्स के बीच भेजूंगा तो ये सेम रिजल्ट्स लेके आएगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम नेचर के रिस्पोंडेंट्स के पास। समझने की कोशिश कीजिए, मैंने 132 लोगों से पूछा है कि सोशल मीडिया ने आपको हेल्प किया है क्या स्ट्रेस बस्टर में ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो ऐसे ही 132 में से कुछ तो इसी में से म्यूचुअल और कुछ दोबारा से अगर मैं आइडेंटिफाई करके सेम क्वेश्चनर दूसरी जगह भेजूं और सेम रिजल्ट्स अगर मेरा क्वेश्चनर लेके आ रहा है, माय क्वेश्चनर इज रिलायबल। And every good journal or every good researcher or every guide want कि उसके स्कॉलर का क्वेश्चनर रिलायबल हो, और वो रिलायबिलिटी हम चेक करते हैं क्रॉनबेक अल्फा से। क्रॉनबेक अल्फा मैं अभी करके बताऊंगा आपको कि स्केल की रिलायबिलिटी कैसे चेक करनी है। वैलिडिटी, वैलिडिटी कहते हैं कि आपका क्वेश्चनर वही इंटरप्रेट करा रहा है जिस इंटरप्रिटेशन के लिए आपने उसे डिजाइन किया था। रिपीटिंग, वैलिडिटी में आपका जो क्वेश्चनर है, रिपीटिशन ऑफ सेम रिजल्ट, मेजरिंग द सेम वी वांट टू। एग्जैक्टली शशांक, दैट्स परफेक्ट। ये दोनों में मैं उन लोगों के लिए भी बताना चाह रहा था कि काफी लोगों के लिए ये न्यू है टॉपिक। तो शशांक इज राइटली सेड कि रिलायबिलिटी तो वो सेम रिजल्ट लेके आए, वैलिडिटी जिस ऑब्जेक्टिव से मैंने बनाया क्या वो ऑब्जेक्टिव मेरा उससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा तो आई नीड टू चेक माय कंस्ट्रक्ट। जैसे मैं चेक करना चाह रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो है आई मीन कि हैज दे हेल्प इनटू स्ट्रेस बस्टर, और निकल के ये आ गया कि इस ड्यूरेशन में सोशल मीडिया का यूजेज बढ़ गया। नो 4G डेटा पैक्स नए आ गए, जो वर्क फ्रॉम होम के डाटा पैक्स नए रिचार्ज अवेलेबल करा दिए कंपनी ने, ऐसा कुछ रिजल्ट निकल के आ गया कि यूज ज्यादा हुए। तो मैं ये तो निकाल ही नहीं पाया कि क्या उसने स्ट्रेस बस्टर में हेल्प किया कि नहीं किया। नहीं किया तो समवेयर आई वाज मिसिंग विद द स्टेटमेंट जो क्लियरली रिलेट करे सोशल मीडिया यूजेज की। टिकटॉक मैंने बहुत सारे बनाए, मैंने तो टिकटॉक के सारे टाइम पास किया, मेरे व्यूज बहुत सारे आए। मतलब आज के डे में तो खैर ये एग्जांपल थोड़ा सा इरेलेवेंट हो गया सिंस इट हैज बीन बैंड, बट ये एक वीक पहले तक लॉजिकल था। तो वहां पे हम वैलिडिटी की बात करते हैं। सो लेट्स चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द स्केल। For reliability, what you will do, आपको करना है that you will be going to analyze again. Analyze में you will go to scale, डायमेंशन रिडक्शन के जस्ट नीचे वाला, डायमेंशन रिडक्शन में जाके हमने फैक्टर किया था, स्केल उसके जस्ट नीचे है, और फर्स्ट आता है रिलायबिलिटी एनालिसिस। सो वी विल बी क्लिकिंग अपॉन इट। अब जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ वो पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर ये प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए मैं रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स का सहारा ले रहा हूँ, ये इधर बाजू में ओपन हो रखी है। होप ये आप लोगों को विजिबल है रिलायबिलिटी एनालिसिस वाली विंडो? यस सर। ग्रेट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, मैं रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स का सहारा ले रहा हूँ। यहाँ से मुझे पता लगा कि स्टेटमेंट नंबर 3, 4 एंड 6, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ 3 को इधर भेजा, 4 को इधर भेजा, 6 को इधर भेजा। ओके, यहाँ पे मैं अब इसकी क्रॉनबेक अल्फा चेक करना चाहता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं? इस फैक्टर का क्रॉनबेक अल्फा यूज कर रहा हूँ, आप याद रखिएगा।
एक फैक्टर का निकालूंगा, फिर दूसरे का निकालूंगा, फिर तीसरे का निकालूंगा, फिर चौथे का निकालूंगा, चाहूंगा तो चारों को डिवाइड कर दूंगा एक सर्टेन वैल्यू से, प्लस कर दूंगा। ये देखिए मैंने ओके प्रेस किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई उसमें एक्स्ट्रा एड-ऑन्स यूज नहीं किए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एनालाइज, स्केल, रिलायबिलिटी, रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स मुझे बता रहा था कि 3, 4 और 6 स्टेटमेंट्स नंबर 1 के अंडर जा रही है, तो मैंने 3, 4 और 6 को आइटम्स में भेजा, ओके प्रेस कर दिया, दैट्स इट, यही किया है और कुछ भी नहीं किया। रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रही है 3 आइटम्स की 0.772। Anything which is 0.6 plus is considered to be good, 0.7 better, 0.8 best. So this is better, 0.7 हमारी आई है। मैं इस प्रैक्टिस को दोबारा रिपीट करूंगा। 4 डायमेंशन रिडक्शन के नीचे स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस। अब मैं कर रहा हूं फैक्टर नंबर 2 के लिए, तो ये वाली स्टेटमेंट्स को वापस वहीं भेज दूंगा जहां से हमने लिया था, बैक एरो प्रेस करके, एंड देन आई विल बी यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 10, 11, 12, 13, क्योंकि ये स्टेटमेंट नंबर ये वो कैंपस लाइफ वाली स्टेटमेंट्स थी, तो ये मैंने 10, 11, 12, 13 जो फैक्टर नंबर 2 के अंडर आ रही थी उसको टिक किया और ओके किया। नाउ 0.6 से प्लस आ रही है, इट इज ओके। तो 4 आइटम्स है और 0.674 है। देखिए ये रिलायबिलिटी आपको हर फैक्टर के अगेंस्ट दिखानी होगी। अब मैं आपको एक होपफुली यू कैन राइट इट इनटू द चैट बॉक्स कि मैंने जो चीजें आपको मेन बतानी थी वो बता दी हैं। नाउ आई विल बी शोइंग यू कि किस तरीके से हम पेपर में इस टेस्ट को यूज करते हैं व्हाइल वी आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर। What if at this stage any factor has reliability less than 0.6? See Chinmo, Dr. Roy, this will be a slight concern. क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, एक मैंने फॉर द सेक ऑफ टेस्ट लगा दिया, एक मैंने टेस्ट लगाया और वो रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स, दे वोंट चेक इट आउट, they will not give you much of the detail कि आपकी क्या वैल्यू कहाँ आई है। but if you will go for Scopus, if you go for Web of Science, and if you will go for ABDC papers, they usually check your you know these values कि आपने कितना अच्छा रिजल्ट फाइंड आउट किया। सो 0.6 से नीचे है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डेटा क्लीनिंग और डेटा एडिटिंग पे थोड़ा सा और काम किया जाए, जिसको हम किसी और वर्कशॉप में डिस्कस कर सकते हैं अगर बहुत डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं आ रहे और माइन्यूट से डेटा में यू नो चेंजेस के साथ हम रिजल्ट्स ला सकें। माइन्यूट, आई एम यूजिंग दिस वर्ड माइन्यूट, वी कैन नॉट चेंज द एंटायर डाटा। तो हम एनालिसिस में चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट में बिल्कुल ही लोगों ने 1 1 1 1 1 1 1 1 टिक कर दिया। यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि प्राइमरी रिसर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डाटा कलेक्शन। फिर डाटा तो कलेक्ट हो जाता है, अगली प्रॉब्लम आती है ऑथेंटिक डाटा कलेक्शन, कि जिन्होंने जो डाटा भर के भेजा है वो पढ़ा भी या नहीं पढ़ा। इसीलिए हम कुछ रिवर्स क्वेश्चंस डाल देते हैं जिनकी कोडिंग हम रिवर्स करते हैं। ये सब सेपरेट इशू है जो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो दैट विल बी कवर्ड इनटू सम अदर पार्ट। लेकिन हम एक चीज को दो तरीके से पूछ सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन में मैंने पूछा आई एम प्योरली वेजिटेरियन, उसने लिखा स्ट्रांगली अग्री, हाँ मैं शाकाहारी हूँ। और एक जगह पे कहीं पे भी रैंडमली पूछ लिया आई लाइक चिकन, और उसने वहां पे भी लिख दिया स्ट्रांगली अग्री, यानी कि उस बंदे ने बिना पढ़े मेरा क्वेश्चनर भरा है, उसको मुझे आउट कर देना चाहिए, वो मेरे रिजल्ट्स को डिस्टर्ब कर देगा। So this smartness we as a researcher have to put into our questionnaire framing, else you know कि हम I mean we are so much occupied कि अगर हम लोग भी कहीं पे रिस्पोंडेंट हैं तो बहुत बार बहुत क्वेश्चंस को बिना पढ़े we have to respond, है ना। सो डॉक्टर रॉय दिस वाज क्वेरी, और फिर इसके अलावा एक क्वेरी और आई है मिस्टर मुसान की, दैट इज कैन वी कैलकुलेट रिलायबिलिटी फॉर कंबाइन 13 क्वेश्चंस टुगेदर। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जब हम फैक्टर एनालिसिस यूज कर रहे हैं तो हम क्वेश्चंस को भूल जाएंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस को फैक्टर एनालिसिस ने फैक्टर्स में क्लब कर दिया है। इसीलिए हम फैक्टर्स की रिलायबिलिटी को टोटल करके पूरे स्केल की बता सकते हैं रिलायबिलिटी। क्वेश्चंस की अलग से कोई रिलायबिलिटी हम एक एक की नहीं निकालते हैं। विल बी मोर कंसर्न फॉर फैक्टर इटसेल्फ। ओके,
Now I'll be showing you one small interpretation. This is one of the project of our student that they have done under my guidance, and if that comes to me, I'll be sharing with you. So probably this is the compiled. Just a second, just give me a second. I'll be showing you कि हम इसको करते कैसे हैं. How do we write it? मतलब कौन कौन सी चीजें लिखनी जरूरी है while you are going for factor analysis के टॉपिक के लिए. There is one more chat. Okay, it was Musam. Well, thank you, Musam. Coming back to the Word file. Now this is a small little file. I'm not very sure ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं. No, sir, we cannot see the file on the screen. Okay. It's the reliability one. Okay, I'll be sharing it. Now it's visible. Okay, it is visible. Yeah, So yeah. I'm coming to the factor analysis का part. See, यहाँ से रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारी शुरू होती है. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कंज्यूमर बाइंग पे देखा गया है. जैसे हम कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, या मिंत्रा को हमने रिकमेंड करके किसी फ्रेंड को फेसबुक पे टैग किया है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो ये स्टडी उसके रिगार्डिंग है, जिसके लिए उन्होंने करीबन अगेन 130 के आसपास का कोई डेटा लिया था. नाउ देखिए यहाँ पे हम क्या क्या शो करते हैं, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ. हम केएमओ बार्लेट टेस्ट को डालते हैं जिसमें 0.762 आई है वैल्यू. फिर यहाँ पे हमने काइजर का थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये देखिए हमने काइजर का साइटेशन देके लिखा है कि केएमओ की वैल्यू अगर 0.760 तो एडिक्वेट है फैक्टर एनालिसिस को अप्लाई करने के लिए. फिर हमने सिग्निफिकेंस वैल्यू बार्लेट टेस्ट ऑफ स्क्वेरिसिटी को बोला है कि प्रूव हो रहा है कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं क्रिएट हुई. ग्रेट. फिर हमने रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स जो आपने देखी वो वाली हमने यहाँ डाली है. फिर उसके बाद ये हमने टेबल बनाई है. नाउ जस्ट हैव अ लुक. देखिए यहाँ पे 4 फैक्टर के अंडर ये स्टेटमेंट्स चली गई. सोर्स ऑफ अपडेट, इन्फ्लुएंसर. सोर्स ऑफ अपडेट, सोशल मीडिया हेल्प्स मी टू अवेयर about the newly launched products. I enjoying updating my reviews over social media. I can get the information of latest fashion through social media. ये रिलेटेड थी, इसीलिए उन्होंने क्लब कर दिया और एक टॉपिक बना दिया सोर्स ऑफ अपडेट. ये कितना परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है वो हमने डाला है. क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू हमने डाली है कि रिलायबल वैल्यू थी. Similarly, second factor, third factor, convenience. Social media makes me feel I'm into my own universe. I purchase through social media because I do not need to go to a shop. Social media shopping allows me to save time. तो convenience से related थी. 15.766 परसेंटेज जो है ये एक्सप्लेन कर रही थी वेरिएंस को, और 0.667 इसका क्रॉनबेक अल्फा था. तो दैट इज हैज बीन डन, और ये हमने इंटरप्रिटेशन में यही चीजें लिखी हैं. उसके बाद इन चारों फैक्टर्स को हमने टी टेस्ट के बेसिस पे मीन कंपेयर किया है. इन्फ्लुएंसर का मीन सबसे हाई आया है 1 सैंपल टी टेस्ट लगाने के बाद. तो हमने बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इन्फ्लुएंसर वाला फैक्टर रोल प्ले करता है. फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देखी है कि किन के रिजल्ट्स में कितने डेविएशंस हैं. आई मीन कन्वीनियंस में सबसे कम है और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर में जो सोर्स ऑफ अपडेट्स में डेविएशन सबसे ज्यादा है और सबसे कम इज इनटू इन्फ्लुएंसर. So this is how we have used factor analysis, where number of statements, there were approximately 26 statements that has been clubbed under 4 major factors which we can quote. So that is there. That's it. Thank you so much, participants. This was a brief about exploratory factor analysis. होप आप लोगों को समझ आया है कि हम कौन से टेबल को कहाँ यूज करते हैं इंटरप्रिटेशन में. And it was really nice sharing my thoughts with you all. You all I found to be very good participants and excellent audience
that I have got to. Thank you, Dr. Pandey, for giving me an opportunity to interact with this bunch of talent. And thank you, Dr. Roy, for being the part of our session throughout. And I again thank you all for giving me this opportunity. If you have any doubt, I am open into the chat box, please. If there is any question, so you may put your question in the chat box. Exactly. Actually, most of the participants have asked the question during the session, and you have Yes. excellently explained all the things. So I don't think there is anything else to ask. Okay, there is Zahira Wasim who is asking, is factor analysis important when dependent variable are ordinal? सी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जब आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो यू गो फॉर फर्स्ट फैक्टर एनालिसिस जहां से आपने डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट कर लिए देन यू शुड गो फॉर यू नो यू शुड गो फॉर रिग्रेशन जब आप इंटेंसिटी देखना चाहते हैं कि किस फैक्टर की सबसे ज्यादा थी तो बीटा वैल्यू जिसका हाई आएगा इक्वेशन में दैट फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अगर मैं अपने रिजल्ट्स की बात करूं कोविड की तो मान लीजिए मुझे 4 फैक्टर मिले स्टूडेंट मेंटल हेल्थ के फिर जब मैंने रिग्रेशन रन किया तो मुझे पता लगा द बिगेस्ट मेंटल हेल्थ जो इशू हो रहा है वो कैंपस लाइफ को मिस करने की वजह से हो रहा है ना so the students who are sitting idle at home they are missing their campus life that is playing the important role so okay hope I have answered your query and then Shanaz said I used to run away please don't run away same I have run away from this but then ultimately I have to learn it Preeti Mishra how to learn more about SPSS see Preeti you first install it see मैं बोलता हूँ research is more hit and trial method please the more you'll do जितने आउटपुट गलत आते जाएंगे क्लोज करते जाइए विंडो कोई इशू नहीं है देन यू कैन आल्सो गो फॉर सम ऑफ द ट्यूटोरियल्स अवेलेबल नीरज कौशिक सर के हैं अजय चौहान सर के हैं आई एम नॉट वेरी श्योर आप लोगों में से कितने लोग उन लोगों को जानते हैं दे आर गुड रिसर्चर्स दे कंडक्ट इट ओके and then you have to practice it nothing else आप tutorials देखें SPSS को open करें logic लगाएं या कहीं पे if you require any help I'll request Dr. Pandey to connect them with me or if we can keep this group alive जो आप लोगों ने create किया है for your FDP the resource person can be part of it and if in any case in any day you require any help we'll be there okay can I will add all the keynote speakers and experts in that group. Actually, it exactly was and created for the informations only. That is why I did not I have not. That's perfect. No, that was your the best thought you can have, Dr. Pandey. But since our workshop is over now, we are not expecting silly queries to be there. I will add all the Now experts. onwards, if have anybody have any query, yes, Andy Field is very good book, and even I refer Andy Field, so you may go for this as well. Well, thank you, Kanchan. Thank you, Vandana. Can one question come in two factors? Yes, बिल्कुल मैं आपको ये पॉइंट बता दूं. Very good question raised by Vandana. देखिए हमारा तो मैंने जो आपको SPSS की फाइल भेजी उसमें बड़ा इजीली इतना अच्छा रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स बन गया कि कोई वैल्यू कहीं पे भी क्लैश नहीं कर रही अदरवाइज क्या होता है वेरिएबल नंबर 11 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.672 फिर यहाँ पे भी वो शो हो रही होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस फैक्टर के अंडर कंसीडर करूं तो देखिए इसके दो रूल हैं रूल नंबर 1 इजी एस्केप तो ये है कि जहां पे फैक्टर लोडिंग ज्यादा आ रही हो मतलब 0.6 और 0.7 में 0.7 फैक्टर लोडिंग ज्यादा है तो मैं उसको फैक्टर नंबर 2 में कंसीडर करूंगा लेकिन अगर मान लीजिए बिल्कुल आइडेंटिकल सी आ गई एक में 0.746 है एक में 0.736 है तो उस केस में आपको डेटा क्लीनिंग करनी पड़ेगी आपको उस पूरी स्टेटमेंट को हटा के देखना है एक बार उसमें से कुछ रिस्पॉन्सेज को हटा के देखना है कम से कम 3-4 बार रन करना है टिल द टाइम यू रीचेस टू द बेस्ट ऑफ योर दिस एस्पेक्ट्स कि आपके रिजल्ट सबसे अच्छे आ जाएंगे वेरी गुड क्वेश्चन वंदना ये होता है और दो स्टेटमेंट एक के अंडर आ जाती है कैन यू रेफर एनी इंडियन ऑथर बुक फॉर रनिंग आप एंडी फील्ड को अगर पढ़ेंगे ना वो इंडियन स्टाइल में लिखी गई है सामने पिक्चर्स दिखाई गई है विच इज बेस्ट
How can we access your paper you have shown to us for reference? See, that's a report actually, and once the student will be done with the Viva, then I'll be able to put it on the group itself. हाँ यस प्लीज फीडबैक फॉर्म है और असाइनमेंट है जो डॉक्टर पांडे शेयर कर रहे हैं, काइंडली गिव इट. हाँ, इनके मल्होत्रा इज गुड, दैट्स एन वंडरफुल बुक एज वेल. यस एग्जैक्टली. Should I go for a questionnaire created by me own, or should I mandatorily go for searching existing questionnaire? No, no, no. Research, do not use the word mandatory. There's nothing mandatory. It is perfectly your wish, शशांक. आपको लगता है कि बहुत रिलेटेड टॉपिक है, इस पे एक स्टडी बहुत पहले हुई थी और बहुत मिलता जुलता है, यू शुड गो फॉर इट, कि आप स्टैंडर्डाइज ले लें. वरना मैं स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड को यूज ही नहीं करना चाहता. स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनेयर होता है, अगर देखिए हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट तभी करते हैं जो हम स्पेसिफिकली अपनी रिसर्च के लिए कर रहे हैं. तो अपनी रिसर्च के लिए तो देखिए मुझे अपना क्वेश्चनेयर बनाना पड़ेगा. तो अगर आप स्टैंडर्डाइज भी ले रहे हैं, उसमें से कुछ स्टेटमेंट्स को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा. वो सेमी स्ट्रक्चर्ड बोला जाता है. सेमी स्ट्रक्चर्ड की भी रिलायबिलिटी चेक होती है. वो काइंड ऑफ न्यू हो गया है. सो दैट देन यू नीड टू गो फॉर दिस. Yes, you should create your own that will give the best of the results. है ना, दूसरों का लेना is something काम करने वाली बात है. Won't give the best, क्योंकि फिर वो तो यही हो गया ना कि एक सैंपल ये बोलता है, दूसरा सैंपल ये बोलता है. That's it. So Shashank, my opinion is that you should create, if not the entire new one, you should make the changes accordingly as per your requirements. Great, thank you so much. Thank you, everyone. It was really nice interacting with you. Thank you, Dr. Pandey. Thank you, Dr. Roy. It is very good. Yes, Dr. Roy, even I have never seen these books, Deepak Chawla and Neena Sodhi. I will be going through this. Thank you. Thank you so Okay. much, Dr. Sani. Thank you, And sir. it is, we have witnessed a great session with you, with satisfying all the participants along with the session. And My pleasure. and I hope that all the participants will get benefited with these lectures, and they will definitely write a nice research paper, and they will do the research work in future. And I have shared the question, a feedback form and assignment of today. So please submit it by 5 o'clock. After that, I will close the link. So Thank you so much. I will Thank you, share it Dr. also Pandey, in for the WhatsApp group also. Sure. Thank you. Shall Thank you I? so much for your. My pleasure, sir. My pleasure. Thank you so much And for I hope adding me we into will the group. get together. Yeah, sure, In sure. future in And other work. I request all the participants and all the resource person to stay connected, because research world is very, very small. It will be great अगर दो participants भी co-authorship में अपना कोई research paper लिखें, तो the purpose of the workshop will be solved actually. Yes, yes. To bring common interest वाले लोगों को एक platform पे लाना, this was what Dr. Pandey has thought of, and it will be great if we can carry it forward. Actually, it is a coincidence that I called Dr. Chinmay Roy today, and I saw that you and Dr. Chinmay Roy are similarly in the academic field. Actually, and that's great. And That's the so nice of interest you. is also similar. And I Sure. hope. In fact, I'll be taking Dr. Roy's number, and we will be Yes, definitely yes, looking for of course. some. I will share your number to him and his number to you also. Sure, sure. And Thank I you will so much, add Dr. all Pan. the expert in the group, so that all the participant can ask any question and touch in future for assistance. My Thank you pleasure. so Thank much you. for today's sessions. We will meet at tomorrow. Tomorrow is the last day of this workshop. So I Great. request to all the experts that please connect with us tomorrow. We'll be connecting. Sure. Dr. Pandey will be there into the group. Thank you. Okay, sir. Okay. Thank you. This Thank is you. officially closer of today's session, and we will meet tomorrow 2 p.m. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you for participants for being with us. And the chat box is open for
5 minutes so that you can submit the feedback form.